مشکل معاشی حالات سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا معاشی حالات بہتر ہونے پر عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ ضیاء کی آمریت پاکستان میں انتہا پسندی اور کلاشنکوف کلچر کی ماں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پاکستان کے یوم سیاح پر پیغام۔ کہا 45 سال قبل آج کے دن پہلے منتخب حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ عوام نے عامر کی غاصبانہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ الٹے قوانین بنانے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی سابق حکومت پر تنقید۔ کہا گزشتہ حکومت نے پیمز کو آزاد ادارے کی حیثیت دی۔ پیمز میں ایک خاتون جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک۔ پیمز کے بورڈ کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا۔ غفلت پر ڈاکٹر کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ جامعہ کراچی خودکش حملے کی تحقیقات میں سی ٹی ٹی کی اہم کامیابی۔ دھماکے کا ماسٹر مائنڈ کالعدم BLA کا کمانڈر گرفتار۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ہمسایہ ملک سے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ مونسون کا طاقتور سپیل جاری۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند۔ کٹیارہ پر سطح 12 فٹ ریکارڈ۔ واسا اور پاک فوج کے دستے الرٹ۔ بارشوں کا سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ بلوچستان بھر میں طوفانی بارشوں سے تباہی۔ کوئٹہ میں 200 سے زائد کچے مکان منہدم ہو گئے۔ 1 بچی اور 3 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ شدید بارش کے باعث کوئٹہ کولپور روڈ آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ کورونا ایک بار پھر منہ زور۔ مزید 600 سے زائد نئے مریض وائرس کا شکار۔ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 3.45% ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق کئی روز بعد کورونا میں مبتلا کسی مریض کا انتقال نہیں ہوا، جبکہ اب بھی 162 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا 23واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ سوابی میں شیر خان شہید کی آخری آرامگاہ پر سلامی کی تقریب۔ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کے محاذ پر شجاعت کی داستان قائم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ غریب طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان خوش آئند ہے۔ معاشی حالات بہتر ہونے پر عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اہم ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غریب طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان
خوش آئند ہے۔ معاشی حالات بہتر ہونے پر عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اہم ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غریب طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان خوش آئند ہے۔ معاشی حالات بہتر ہونے پر عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ ضیاء الحق کی آمریت پاکستان میں انتہا پسندی اور کلاشنکوف کلچر کی ماں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان کے یوم سیاح کے دن پر پیغام میں کہا کہ 5 جولائی 1977 کو قومی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 45 سال قبل آج کے دن پہلے منتخب حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ پاکستان آج تک سیاسی، معاشی اور معاشرتی بیماریوں کو جھیل رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پیغام میں مزید کہا کہ معاشرتی بیماریوں کے تانے بانے آمریت کے دور سے ملتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے عدالتی قتل کا اسٹیج تیار کیا گیا۔ ڈکٹیٹر نے پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ عوام نے عامر کی غاصبانہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مزید کہا، پاکستان پیپلز پارٹی قائد اعظم کے نظریے اور ویژن کی علمدار جماعت ہے۔ سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو، شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو سمیت ان تمام سیاسی کارکنان، طالب علموں، مزدوروں اور صحافیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے 1973 کے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے شہادتیں قبول کیں، کوڑے کھائے، جبر اور تشدد برداشت کیا۔ 5 جولائی یوم سیاح کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے آصف الزرداری نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ جب بھی آئین اور جمہوریت پر حملہ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے آئین اور جمہوریت کا بھرپور دفاع کیا۔ کراچی یونیورسٹی حملے میں ملوث گرفتار ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم داد بخش کو 16 جولائی تک کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر خودکش حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے گرفتار مبینہ سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ ملزم داد بخش کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا، ملزم BLA اور BLF کراچی کا کمانڈر ہے۔ ملزم کراچی یونیورسٹی میں چائنیز اساتذہ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ملزم کراچی میں چینی شہریوں پر حملوں میں سہولت کاری کا کام کرتا تھا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی خودکش حملے میں خاتون کو استعمال کیا گیا۔ کیس کی اہم بات یہ تھی کہ حملہ آور خاتون اکیلی نہیں تھی، گرفتار BLA کمانڈر نے سب کچھ بتا دیا۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ پڑوسی ملک سے ہمارے ملک میں داخل ہوا، جس ملک سے دہشت گرد آئے اس کا بتایا جائے گا۔ تحقیقات مکمل ہونے تک کسی ملک کا نام نہیں لے سکتے۔ دہشت گرد گروپ نے طلباء اور خواتین کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی خودکش حملے میں خاتون کو استعمال کیا گیا۔ کیس کی اہم بات یہ تھی کہ حملہ آور خاتون اکیلی نہیں تھی، گرفتار BLA کمانڈر نے سب کچھ بتا دیا۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ پڑوسی ملک سے ہمارے ملک میں داخل ہوا، جس ملک سے دہشت گرد آیا اس کا بتایا جائے گا۔ تحقیقات مکمل ہونے تک کسی ملک کا نام نہیں لے سکتے۔ دہشت گرد گروپ نے طلباء اور خواتین کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ الٹے قوانین بنانے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی سابق حکومت پر تنقید۔ کہا، گزشتہ حکومت نے پیمز کو آزاد ادارے کی حیثیت دی۔
پیمز میں ایک خاتون جاں بحق، دو کی حالت تشویشناک ہے۔ پیمز کی بورڈ کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا، غفلت پر ڈاکٹر کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ الٹے قوانین بنانے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی سابق حکومت پر تنقید، کہا گزشتہ حکومت نے پیمز کو آزاد ادارے کی حیثیت دی۔ پیمز میں ایک خاتون جاں بحق، دو کی حالت تشویشناک ہے۔ پیمز کے بورڈ کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا، غفلت پر ڈاکٹر کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ہم کیوں امریکہ سے معافی مانگیں، امریکی کو معافی مانگنا چاہیے۔ عمران خان کی اکثریت واضح ہو گئی، پوری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ انہوں نے عمران خان پر ذاتی حملے شروع کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ حکومت ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، انتخابی حلقوں میں غیر قانونی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہم کیوں امریکہ سے معافی مانگیں گے، معافی تو امریکہ کو ہم سے مانگنی چاہیے۔ عمران خان کی اکثریت واضح ہو گئی ہے، پوری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ انہوں نے عمران خان پر ذاتی حملے شروع کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ حکومت ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، انتخابی حلقوں میں غیر قانونی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نالا لئی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ نشیبی علاقے بارش کے باعث پانی میں ڈوب گئے۔ اسلام آباد کا H13 سیکٹر اور ترنول کا علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ راولپنڈی، صادق آباد، ڈھوک کالا خان سمیت متعدد نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک گھنٹے میں 56 ملی لیٹر بارش نے ہر طرف پانی پانی کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ اسلام آباد میں بارش، کورنگ نالا بپھر گیا، پھنسے ہوئے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش کی وجہ سے نالا لئی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پاک فوج کے دستے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نالا لئی پر پہنچ گئے۔ ریسکیو 1122 کا عملہ بھی گوالمنڈی کے مقام پر نالا لئی پر موجود ہے۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے، کورنگ نالا بپھر گیا، پھنسے ہوئے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش کی وجہ سے نالا لئی کی سطح بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ پاک فوج کے دستے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نالا لئی پر پہنچ گئے۔ 1122 کا عملہ بھی گوالمنڈی کے مقام پر نالا لئی پر موجود ہے۔ ملک میں بجلی کا بحران برقرار اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کا مجموعی شارٹ فال 7800 میگا واٹ کے لگ بھگ ہو گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 29,000 اور پیداوار 21,200 میگا واٹ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ آئی پی پی سے 10,241 میگا واٹ، ونڈ پاور سے 1,629، سولر پلانٹ سے 123، بگاس سے 120، جوہری پلانٹ سے 2,275 اور ہائیڈل پاور سے 5,000 میگا واٹ سمیت دیگر ذرائع سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 653 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ کرونا کے 653 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18,950 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.45% رہی۔ NIH کے مطابق ملک بھر میں عالمی وبا کرونا کے 162 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस एनसीओसी ने ईद उल अजहा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। एनसीओसी का कहना है कि ईद उल अजहा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए, इज्तिमात मस्जिद के बजाय खुले मैदानों में मुनक्किद किए जाएं। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर किए जाएं। एनसीओसी ने उलमा इकराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की तलकीन की और नमाज के खुतबे मुख्तसर रखने की हिदायत की है। एनसीओसी का कहना है कि कोरोना बुखार वगैरह की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत ना करें। वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़िम इजलाक के सेहत कार्ड स्कीम की बंदिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कबायली इजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि वफाक से इस स्कीम के फंड्स की मुंतकली तक स्कीम को जारी रखने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। पीएचए के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। महकमे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद बेहतर किया जाएगा। पीएचए और निजी बैंक के दरमियान डिजिटलाइजेशन के हवाले से पीएचए हेडक्वार्टर में एमओयू साइन हुआ। आपको बताते चलें कि पीएचए के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। महकमे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पीएचए बैंक के दरमियान पीएचए हेडक्वार्टर में एमओयू साइन तकरीब का इनेकाद किया गया है। पीएचए के तमाम डिपार्टमेंट्स की डिजिटलाइजेशन एम्प्लॉयज की हाजिरी व काम को यकीनी बनाने के लिए एमओयू साइन किया गया। डीजीपीएचए उमर जहांगीर और जिंदगी चेयर्स बैंक के चीफ ऑफिसर नुमान अजहर ने एमओयू साइन किया। तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब मियां शकील अहमद ने खुसूसी शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीएचए के डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत के वीएम के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा रहा है। डीजीपीएचए उमर जहांगीर का इस मौका पर कहना था कि महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए बाबर साहबदीन, तर्जुमान पीएचए नादिया तुफैल और दीगर पीएचए अफसरान ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आपने तफसीलान आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LWMC सफाई टीमें मवेशी मंडियों में मुतहरिक हो गई। 13 मवेशी मंडियों में 170 से ज़ायद वर्कर सफाई ऑपरेशन पर तैनात हैं। सफाई से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LWMC से सफाई टीमें मवेशी मंडियों में मुतहरिक हो गई। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LWMC सफाई टीमें मवेशी मंडियों में मुतहरिक हो गई। 13 मवेशी मंडियों में 170 से ज़ायद वर्कर सफाई ऑपरेशन पर तैनात हैं। सफाई से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। CEO राफे हैदर की ऑपरेशन टीमों के अफसरान को खुद फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडियों से सॉल्ट वेस्ट के साथ साथ ग्रीन वेस्ट भी ठिकाने लगाया जा रहा है। राफे हैदर का कहना है कि 50 से ज़ायद मिनी डंपर्स, लोडर्स, चेन आर्म रूल्स और कंपैक्टर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मवेशी मंडियों में धूल मट्टी से बचाव के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। आवाम को सफाई बारे आगाही देने के लिए अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए गए हैं। खरीदारी को ईद कुर्बान पर सफाई बरकरार रखने के लिए आगाही दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ कामरान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डायरेक्टर जनरल बराए यूरोपीय यूनियन और खारजा अमूर वजारत सेहत तुर्की और लाहौर में तुर्की के काउंसल जनरल अमीर ओजबे की वफ्द के हमरा मुलाकात में सेहत के शोबे में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया और पाक मेडिका एक्सपो और हेल्थ बिजनेस फॉर्म्स के इनेकाद के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात
ताल्लुकात मोहब्बत, अखुवत और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तेवार हैं। तैयब उर्दुगान अस्पताल जनूबी पंजाब के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। सेहत के शोबे में तुर्की के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। दोनों बरादराना ममालिक में सेहत और बिजनेस के ताल्लुकात बढ़ाने की वसी तर मौके मौजूद हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह में तालीम, सेहत के शोबे में तरक्की, एनर्जी बहरान और गुर्बत का खात्मा अवलीन तरजीह है। पाक मेडिका एक्सपो एंड बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में लाखों की तादाद में जानवर लाए और बेचे जा रहे हैं। मवेशी मंडी में साफ पानी का प्लांट भी नस्ब किया गया है। और क्या क्या सहूलियात हैं, जानते हैं डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब की सबसे बड़ी कैटल मंडी शाहपुर कांजरा में मुल्क भर से कुर्बानी के लाखों जानवर लाए गए हैं, जहां पर शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद के जानवर खरीद सकते हैं। शाहपुर कांजरा में आपको हर तरह का जानवर, मसलन बकरा, बकरी, छतरा, बैल, भेड़, गाय, भैंसा और ऊंट कसीर तादाद और मुख्तलिफ अनवा में नजर आते हैं। इस दफा महंगाई की शरह बुलंद होने की वजह से जानवर काफी महंगे हैं। शहरियों का कहना है कि जानवर उनकी कीमतें खरीद की ताकत से कहीं ज्यादा महंगे हैं, मगर कुर्बानी भी अदा करनी है। जबकि व्यापारी हजरात का कहना है पेट्रोल और दीगर चीजों के महंगा होने की वजह से जानवरों के रेट ज्यादा हैं। इस दफा खरीदारों के लिए मंडी के अंदर वसी पार्किंग का इंतजाम किया गया है। मुल्तान रोड से दाखिल होते ही सिटी ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बाड़ लगाकर आने और जाने के रास्ते अलग कर दिए हैं, जिससे ट्रैफिक का रश नहीं बनता। मंडी में रेस्क्यू 1112 का अमला भी तैनात है। पुलिस के साथ प्राइवेट गार्ड्स भी अमनो अमान कंट्रोल करने में मसरूफे अमल हैं। इस मंडी में क्या क्या सहूलियात दस्तयाब हैं, जानते हैं मंडी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जाजब सईद से। और सेहत के हवाले से जो जो सहूलियात दस्तयाब हैं और लिम्पिस्किन के हवाले से क्या सहूलियात हैं, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमरान कमर से। जिसमें सबसे पहले तो जो इस साल एक इकदाम हुआ है सबसे बड़ा, आज ही मैडम कौसर खान हमारी सीईओ हैं, उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इफ्तिताह किया है। और ये पंजाब की मवेशी मंडियों में मतलब पहली मवेशी मंडी है जिसके अंदर प्रॉपर एक आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 2000 लीटर पानी को साफ़ करने की है 1 घंटे में। इसके साथ जो दीगर हमने अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं। 20 के करीब हमने जो है आर्म्ड गार्ड्स यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी से हायर करके डिप्लॉय किए हैं। उसके अलावा लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से स्प्रे कर रहे हैं। जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। टेंट्स की इनको सहूलत दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान रेलवे में उल्टी गंगा बहने लगी। रेलवे के डीजल चोर मुलाजमीन अपनी सीटों पर विराजमान। 49,000 लीटर डीजल की खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी को पहले दबा दिया गया। रेलवे लोको शेड की क्रेडिट बुक में कई बेजाब्तियां सामने आने लगी। कोहिनूर न्यूज ने रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड और दीगर कागजात की फुटेज हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अशफाक अहमद से। जी राना अशफाक, ये क्या करप्शन का मामला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे जो है इस वक्त खसारे का शिकार है, जबकि रेलवे मुलाजिम ही जो है वो रेलवे को जो है वो दीमक की तरह चाट रहे हैं। जैसा कि डिविजनल लाहौर रेलवे डिविजनल में जो है लोको शेड में जो है वो 2 जो है रेलवे के मुलाजमीन जो है इनके ऊपर डीजल चोरी के जो है वो करप्शन के जो है वो इंक्वायरी लगाई गई थी। जबकि 2021 में जबकि साबिक जो मिनिस्टर थे आजम स्वाति, उनके दौर में ये इंक्वायरी लगाई गई और इस इंक्वायरी को जो है वो दबा दिया गया था। इसमें 49,000 लीटर जो है वो डीजल की खुर्द-बुर्द का मामला था। जबकि अब जो है वो दोबारा से जो है वो उसका फैसला सामने आया है, जबकि इन मुलाजमीन को मुअत्तल करना चाहिए था। जबकि रेलवे हुकाम की जानिब से समझ से बालाता रहा है कि इनकी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि इनको किसी किस्म की जो है वो सजा नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया राना अशफाक, आपने तफसीलन आगाह किया।
ईद उल अजहा पर शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, चेयरमैन LWMC ख्वाजा अहमद हसन, MD वासा गफरान अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से, जो इस वक्त CEO LWMC राफिया हैदर के साथ मौजूद हैं। जी कामरान, क्या कहना है राफिया हैदर का? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मुतहरिक हो गई है। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वाजा अहमद हसन चेयरमैन LWMC ने ब्रीफिंग भी दी है। और राफिया हैदर की जानिब से जून के माह से ही जो है वो सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था, और गैर कानूनी डंपिंग के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई होंगी, इसी बारे में जानते हैं। राफिया हैदर से बात करें। मैडम बताइएगा, गैर कानूनी डंपिंग वाले जो है वो आप लोगों की मेहनत में भी पानी फेर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक्टिवली काम करते हुए अपने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो है मेनली, क्योंकि उनके जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तरफ से हो रहा होता है, उनके साथ हमने इंगेज किया है। और इन्फोर्समेंट विंग और प्लस बिजनेस डेवलपमेंट विंग और ऑपरेशंस टीम हमने ऑलरेडी ईद से पहले उनको इंगेज किया है, ताकि जहाँ जहाँ ये वाले इश्यूज आते हैं वहाँ पे वो केटर फॉर हो जाए। और कहीं पे हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी इन्फोर्समेंट विंग 24 घंटे वर्किंग कर रही होती है, सर्वेलेंस करके दे विल टेक करेक्टिव एक्शन। ऐसा कानून उनके ऊपर लागू होता है और कितनी हद तक जो है वो जुर्माना है? गधा गाड़ी वाले को या एक चिंची लोडर रिक्शा जो है वो अलाइशे वहीं पर फेंक जाते हैं और वो सारा कूड़ा जो है वो बिखर जाता है, उनके लिए क्या तजवीज़ की गई? देखिए, लोकल गवर्नमेंट के कानून के तहत होती है, हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स एम्पावर्ड होते हैं उसके साथ साथ, लेकिन हमारा पहला वर्किंग होती है कि हम उनको डाइवर्ट करवाएं, जहाँ पे वो इलीगल डंपिंग कर रहे हैं उनसे उनको हम अपने कलेक्शन पॉइंट्स की तरफ डाइवर्ट कराते हैं। अगर 15 लाख बैग्स बनाए गए हैं, शफाफियत को कैसे देख रही हैं? क्या समझती हैं, सियासी नज़र हो जाएंगे या आम शहरी को भी बैग मिलेंगे? देखिए, हमारे अपनी हमने जिस तरह बताया PLTP की ऐप हमने डेवलप कराई है, जिसके अंदर सारी की सारी वर्किंग लॉग हो रही होगी, और जो पेमेंट है उसको हमने साथ क्लब कर दिया। अगर वो उधर मौके पे मैसर नहीं है तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। तो इससे बेहतरीन चेक और कोई नहीं हो सकता। साथ साथ हमने एक्सटर्नल सर्वेलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रही होगी। उनके 49 के करीब जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ क्लब में होंगे, जो कि ये चीज़ मॉनिटर भी कर रहे होंगे। आपको बताते चलें कि गैर कानूनी डंपिंग करने के खिलाफ ज़िला इंतजामिया के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, जब वो सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। और जो बैग्स के वाले से राफिया हैदर का कहना है कि बैग्स की जो शफाफियत है, PIT के जो हमने एप्लीकेशन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए इलाहाबाद में भी कुर्बानी के लिए बकरों की मंडियां सज गई हैं, जिनमें बबलू और हीरा नामी बकरों की जोड़ी ने धूम मचा दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावन से, जो इस वक्त बबलू और हीरे के मालिक के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ईद कुर्बान की आमद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद मवेशी मंडी में, जहाँ पर हीरा और बबलू नामी बकरे के काफ़ी चर्चे हैं। इस वक्त हम बबलू और हीरा नामी बकरे के मालिक के पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या रेट इनका रखा हुआ है और क्या वो इनको खिलाते हैं। हमने इसका रेट तो 4 लाख रुपए मांगा है, तो हम इसे दूध, वंडा, घी और अच्छी खुराक दे रहे हैं। तो महंगाई की वजह से जो खरीदार हैं और व्यापारी हैं उनमें बहुताव जारी है। तो मुझे उम्मीद है 3.5 लाख लग चुका, मैं इसका 4 लाख मांग रहा हूँ, ये तो इसका खर्चा ही है। हाँ जी, जैसा कि आपने व्यापारी की बात सुनी, उनका कहना है कि मैं बबलू और हीरा नामी बकरे को घी, दालें और सब जो चीज़ें हैं वो खिलाता हूँ। मुझे 3.5 लाख रुपया इसकी जो डिमांड है। जी बहुत शुक्रिया अरशद सावल, आपने तफसीलन बताया। कोहिनूर न्यूज़ बना संबड़ियाल के व्यापारियों की आवाज़। कोहिनूर न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि संबड़ियाल में मवेशी मंडी नहीं है। खबर नशर होते ही इंतज़ामिया ने मुकम्मल सहूलियात के साथ व्यापारियों को मवेशी मंडी फराहम कर दी। मवेशी मंडी की फराहमी पर व्यापारी कोहिनूर न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं। सरगोदा के चारों अजला में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए सरकारी सतह पर कायम आरजी सेल्स पॉइंट्स पर खरीदारों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री शटल सर्विस शुरू कर दी गई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिवीजन भर में कोई गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी। सिर्फ इजाज़तनामे के हामिल इदारों को ही खालें इकट्ठी करने की इजाज़त होगी। तमाम मवेशी मंडियों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह सड़कों और गलियों में जगह जगह सिरिपाए भूनने को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है। ईद उल अज़हा पर सेहत और सफाई के निज़ाम को मिसाली बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। ईद कुर्बान की आमद मुल्क के दीगर शहरों की तरह जंबर में भी आरजी बकर मंडियां कायम कर दी गई। ताहम महंगाई के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान हैं।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब जोइया से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी तैयब, क्या कहना है व्यापारियों और खरीदारों का? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की करीब आते ही मैं आपको बताता चलूं कि जंबर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो आरजी बकर मंडियां कायम कर दी गई हैं। अगर मैं बात करूं जंबर की, तो जंबर मेन मुल्तान रोड के अतराफ जो है वो 2 से 3 जगहों पर जो है वो आरजी बकर मंडियां कायम की गई हैं, जहां पर ना सिर्फ बकरे, छतरे, गाय बल्कि दुम्बे समेत दीगर जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए जाने वाले जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला वो जारी है। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, जानते हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि वो इस महंगाई के दौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा आप बकरा लेने हैं तो पिछले साल की निस्बत तो डबल रेट है। महंगाई का ये आलम है कि खुद जो है कि ताजरान वो बहुत परेशान है। व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि पहले से हमें जो है खल, चोकर और जो है कि बाकी अखराजात बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हम भी महंगाई करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। अगर बात की जाए व्यापारियों की, तो मेरी व्यापारियों से जो बात हुई है उन्होंने ये भी बताया कि जानवर जो पिछले साल हम 30 से 35 हज़ार रुपये का बकरा बेच रहे थे, वो इस साल जो है 65 से 70 हज़ार रुपये। जलालपुर पीरवाला में ईद उल अजहा की आमद है और तहसील इंतजामिया की तरफ से बकरा मंडी तो सजा दी गई, लेकिन महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदारी मुश्किल हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज चौगत्ता से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला में ईद उल अजहा की आमद है और यहाँ पर बकरा मंडी भी सजी गई है और बकरे भी तरह तरह के लाए गए हैं यहाँ पर। और जो शहरी हैं वो महंगाई का रोना रो रहे हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद जो है ना वो इजाज़त नहीं देती कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया जाए। मज़ीद मेरे साथ जो है ना यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो बकरा ख़रीदने के लिए बकरा मंडी में आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस साल जो है ना बकरों की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत है। गरीब की पहुंच से ये बहुत दूर चला गया है, तो लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इस महंगाई को कम करें। जो बकरा हम पिछले साल 15 से 16 हज़ार रुपये में लेते थे, इस टाइम उस बकरे की कीमत 40 हज़ार 45 हज़ार, इससे कम नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मेहरबानी करके कुछ महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी, शहरियों का कहना है कि जो पिछले साल हमने 15 हज़ार में बकरा लिया था वो इस साल हमें 25 हज़ार 30 हज़ार के रेट में मिल रहा है। लिहाजा हमारी पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने तमाम सुप्रिटेंडेंट जेल को ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी और सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मरासला जारी कर दिया। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने हदायत की कि अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए सुप्रिटेंडेंट जेल रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे इंतज़ार गाह में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएँ। ईद तातीलात के दौरान कैदियों के वर्षा को मुकम्मल शनाख्त के बाद खाना और सामान जमा कराने की इजाज़त होगी। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की ज़ेर निगरानी सामान जमा करवाने वालों की तलाशी ली जाएगी। ईद की नमाज के दौरान सुप्रिटेंडेंट जेल कैदियों के दरमियान मौजूद रहेंगे। अफसरान और मुलाजमीन को शदीद मजबूरी के अलावा छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा। डेरा इस्माइल खान थाना सदर की हदूद में सब्जी मंडी के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में शौकत और हबीबुल्लाह शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे जो कि फरार हो गए। तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान थाना सदर की हदूद में सब्जी मंडी के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग से ट्रैफिक के 2 एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में शौकत और हबीबुल्लाह शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे जो कि फरार होने में कामयाब हो गए। ठट्ठा हैदराबाद रोड पर 2 मंजिला गाड़ियों में तसादुम से 2 अफराद मौका पर जान की बाजी हार गए। जाँ भाग अफराद की शनाख्त नज़ीर और नवाज अली के नामों से हुई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। डीपीओ बहावलपुर इबादत नसार की हदायत पर पुलिस सदर सर्कल की कामयाब कार्रवाई। डकैती, राहजनी और चोरी में मुलविस एक बैनुल इजलाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए की नकदी, असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर पुलिस सदर सर्कल के कामयाब कार्रवाई, डकैती, राहजनी, चोरी की वारदातों में मुलविस बैनुल इजलाई गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियत की चोरीशुदा मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी। एसडीपीओ सदर सर्कल राव तारक परवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, कुछ अरसे से हमारे बहावलपुर में कैश स्नैचिंग की, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की और मोटरसाइकिल चोरी की बहुत सी वारदातें हो रही थी। इस पर जो है फिर डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक हमने अपनी टीम तश्कील दी अपने सर्कल के हवाले से, और फिर इस टीम ने जो है वो गैंग ट्रेस किए, जिनमें से एक गैंग जो है वो आमिर शाह गैंग है। उसके कुछ मेंबर्स हमने अभी अरेस्ट कर लिए हैं, कुछ मेंबर्स उसके अभी बाकी हैं। उनसे हमने काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिल मुख्तलिफ थानों के बरामद किए हैं, जो आपने देखे जो बाहर खड़े हुए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल चोरी की भी बहुत सी वारदातें हो रही थी। उस सिलसिले में भी हमने अपनी टीम के ज़रिए जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की है, और अब्बास नगर में थरपारकर के इलाके मिट्टी के गांव रंगीला के मकीनों ने शिकार किए हुए 7 हिरन समेत 3 शिकारियों को पकड़ लिया। शिकारियों में गनी, अली अहमद, सलाम शामिल हैं। शिकारियों में से 2 अफराद फरार हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत शिकारियों को धर लिया और मिट्टी पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने नायाब नस्ल के जानवरों के शिकार के खिलाफ धरना देने का इंदिया दे दिया। झांगा मांगा में सैनिटरी वर्कर्स 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि तहसील इंतजामिया के अंडर होने की बजाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मातहत रखा गया है, जिसकी वजह से सीईओ कसूर सैलरी देने की बजाय टाल मटोल का काम कर रहे हैं। 3 महीनों से तनख्वाह न मिलने की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। ईद की खुशियां भी मान पड़ जाएंगी। डीसी कसूर मामले का नोटिस लें। झांगा मांगा में सैनिटरी वर्कर्स 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि तहसील इंतजामिया के अंडर होने की बजाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मातहत रखा गया, जिसकी वजह से सीईओ कसूर सैलरी देने के बजाय टाल मटोल का काम कर रहे हैं। 3 महीनों से तनख्वाह न मिलने की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ईद की खुशियां भी मान पड़ जाएंगी। डीसी कसूर मामले का नोटिस लें। गंबट में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। दिन को चैन, ना रात को सुकून। एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब वापदा हुकाम की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी हजरात को परेशान कर दिया। गंबट शहर में बिजली की लोड शेडिंग 14 घंटे, जबकि देहातों में लोड शेडिंग 16 घंटों तक जा पहुंची। शहरियों ने सेप्को, गंबट और आला हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म करने का मुतालबा किया है। हरिपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। शौकत प्लाजा से सदीक अकबर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजिरों का कहना था कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और जालिमाना टैक्स को खत्म किया जाए। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में लोड शेडिंग और जालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जीटी रोड ताजर एसोसिएशन ने शौकत प्लाजा से सदीक अकबर चौक तक लोड शेडिंग और जालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर ताजरों का कहना था, महंगाई ये गरीब आदमी दी कमर तोड़ छोड़िए, बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी, किसी चीज़ा का कोई हाल भी नहीं। असा तो मशवरे देंगे हो जरा 2 प्यालियां चाहिए 1 प्याली चांदी पी के नो ते आप इस मशवरे से अमल करो ना। प्रोटोकॉल अपने कटाओ तुसी। ये जो अफसर के पेट्रोल फ्री पे चलते हैं, जो प्रोटोकॉल वजीरां के फ्री पे चलते हैं, इन्हों के पेट्रोल कटाओ, बिजली कटाओ, इन्हों की गैस बंद करो। ये नहीं पता लगे यार गरीब आदमी किस तरह गुजारा करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਜਰੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੰਦਾ ਹੈ, इतना रेवन्यू अगर डिस्ट्रिक्ट के प्रभात देवे, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा देवे तो असां दी दाड़ियां मन सटो बोरिज पूरे ने। असी सिर्फ एहतजाज करने आ। असां दा ये प्यार इस चीज ना समझो जो ले असी पिछले 50 सालों तो तुसी देखते आए हो, इन्ना ही टकते आए आ।
रहीम यार खान में 4.5 अरब रुपए की खती रकम से बनने वाला मेगा सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। सीवरेज लाइन ठीक करने के बजाय बल्दिया ने मकीनों को 24 घंटे में घर छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद से, जो इस वक्त मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मेगा सीवरेज सिस्टम रहीम यार खान का मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। मुख्तलिफ मोहल्ले और गलियां जो है सीवरेज के पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये पूरी रोड जो किजाफी कॉलोनी की ये गली है मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। ये मेन गली है जिसके ज़रिए लोग इंटर होकर अपने घरों को जाते हैं, और बाकी जो गलियाँ हैं और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। बल्दिया रहीम यार खान और मुख्तलिफ सियासी हवाले से जो कायदीन हैं उनसे कहा गया, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहल्ला के लोग। जी बताइएगा कि ये कितने अरसे से है ये सर तकरीबन 3-3.5 साल से गलियों में पानी था, अब घरों में पानी है। यहाँ इंसान रहते हैं, मुसलमानों के घर हैं, यहाँ इंसानों के घर है। ये लोग इतने परेशान हैं कि पीने का पानी जो है वो भी बेकार हो चुका है। तमाम इंतजामिया जो है आंखें बंद करके सोई हुई है। अच्छा, कौन कौन से इलाके मुतासर हैं? जिला रहीम यार खान, बहावल नगर इंतजामिया की जानिब से आटे के स्टॉल्स तो लगा दिए गए, लेकिन वहां पर मौजूद ना साए का इंतजाम है ना ही पानी का। गरीब आवाम तपती धूप में एक आटे के थैले के हसूल की खातिर लंबी कतारों में लगने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर फरुखाबाद, और यहाँ पे एक आटे की थैली के असूल के लिए लंबी कतारें तपती धूप के अंदर यहाँ पर खवातीन और यानी कि मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर ये कितनी देर से यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। जी बाबा जी बताइए कि आप यहाँ से कितनी देर से खड़े हैं? आप? हम सर सुबह से खड़े हैं यहाँ पे 7 बजे से। क्या काम करते हैं आप? आदमी है, कारपेंटर का काम करता हूँ, मजदूरी का। कितनी देर से आए हो? तकरीबन 3 घंटे तो हो गए। अब मजदूरी करोगे या आटे के लिए खड़े होंगे? क्या करें, मजबूरी है, अब आटा नहीं मिल रहा। 8 बजे दिया, 8 बजे तक घरों आइया मेरे बेटा। 7 बजे के आए खड़े भाई, आटा अभी तक नहीं मिला, बंद कर दी थी दुकानें उन्होंने। का इंतजाम नहीं है, धूप में खड़े हैं, 2-3 घंटे हो गए हमें लगातार। धुप च मार दिता सानू, चंगा मारिया है। धुप्पे आए, एक बीमार है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं लेडीज एक आटे की थैली के लेस्को हेडक्वार्टर में एक एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के बायस धुआं फैल गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिल्डिंग में कतई तौर पर आग नहीं लगी और ना ही किसी किस्म का जानी या माली नुकसान हुआ है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बिल्डिंग को स्टाफ से खाली करवा लिया है। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कश्मीर लीग राशिद लतीफ़ का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत जल्द शुरू होगा। मुल्की और गैर मुल्की पाकिस्तानी और कश्मीरी क्रिकेटर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनओसी जारी करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद केपीएल की ड्राफ्टिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के फैंस भी इंतजार करें। खेलो आज़ादी से स्लोगन के तहत ही दूसरे सीजन का आगाज होगा। केपीएल के दूसरे सीजन में बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस होंगे। महकमा स्पोर्ट्स और कमिश्नर लाहौर के बाहमी ताउन से अंडर 13 लाहौर डिवीजन हॉकी लीग 5 जुलाई से शुरू होगी। लाहौर डिवीजन के बाद हॉकी लीग का सिलसिला पंजाब भर में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज़ और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंडर 19 अंडर 13 हॉकी लीग करवाई जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि डिवीजन के 4 अजला की 9 टीमें हॉकी लीग में हिस्सा ले रही हैं। हर जिला की 2-2 टीमें जबकि लाहौर की 3 टीमें शामिल होंगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब असदुल्ला फैज़ ने मजीद कहा कि माजी में हॉकी में पाकिस्तान का बहुत बुलंद मकाम था, जिसको दोबारा हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।